और mainly I follow Stan Winston's swing, matlab, Understood. the stage analysis, and look Understood. out for the stage one breakouts. Understood. And I use trend filter of 200 daily moving average on broader index. Understood. And if they are above that, then I will go for long positions. And Understood. even for stock, like I use 30 weekly and 200 daily for broader this, and then a Understood. short moving average for uh, exits, and tighten up as it moves away from the 200. I tighten the stop losses and reduce Understood. the position sizes. Understood. And RSI is another indicator which I use to help entry decisions. Understood. Apart Understood. from this नहीं, और कभी कभी हैकेनेशी कैंडल्स जस्ट टू बी लाइक, बट उसमें भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा है बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन प्राइसेस Correct. ऑफ हैकेनेशी एंड द Correct. रियल प्राइस. Correct. सो थोड़ा सा कभी कभी जाता है, बट लॉन्ग टर्म में शायद चल जाता है वीकली या उसमें Got it. नॉट मच प्रॉब्लम. Got it. So I basically don't preach कि candlesticks देखो या फिर chart patterns देखो. हाँ Uh, वो what I generally do is I mean in what you discussed with me just now is everything is based on prices, whether it is trend or the moving averages, the indicators, and all other stuff. राइट. Uh, I think you also need to focus on demand supply. क्योंकि या the prices can be manipulated but demand supply can't be manipulated, so that will give you more of clarity. And the second question I would like to ask I mean you don't have to answer me, but नो you नो ask श्योर आई yourself, कैन. why 200, what is the logic and what is the thought behind it. I mean why I'm asking this कि जब भी हम किसी को कुछ फॉलो करते हैं, ask yourself what is the logic, your logic behind it. या फिर उन्होंने अगर कुछ लॉजिक बताया तो देन आस्क कि इफ दैट इज समथिंग I, विच I I thought like 200 was kind of yearly अंडरस्टूड, price. So but we generally get to 220 240 sessions in a year. yes, yeah, yeah. Then why 250 200? would, yes, right, right. सो वो एक ना एक बेसिक थॉट रहता है कि Mhm. दैट वी शुड आंसर आवरसेल्व्स कि मैं अगर किसी को कुछ फॉलो कर रहा हूँ, व्हाट इज माय लॉजिक बिहाइंड इट. And just dare to Challenge put out these something things. behind that, and take that decision कि ये मेरा logic है. I will not follow 200, I will follow example 160, whatever Mhm. that would be. So if you have logic for 150 160, use that, because you will be more confident while taking a trade instead of following someone. So वो एक बहुत important चीज है to build ourself independent, our independent system. So Right. uh, whether it is uh, whoever, I mean the big guys, big traders who have been performing a lot in the past, why they are able to do it, because they have their own system, they have their own logics behind it. So why not, why should we don't have our logics? तो वो डेवलप करना जरूरी है, एंड दैट विल मेक यू कि ये मेरा लॉजिक है. ऐसा नहीं है कि आपका लॉजिक सही हो, गलत भी हो सकता है, बट देन यू कैन इम्प्रूव ऑन, बट Right. हैव योर ओन लॉजिक्स. तो वो Okay. कॉन्फिडेंस देगा यू टू बिकम इंडिपेंडेंट इन मार्केट्स. और बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन मार्केट इज द आइडियल गोल, क्योंकि you cannot depend growing Right, your right. money on Yeah. someone else. So that's the bad idea. That's how basic my thought process works like that कि कुछ भी करो लेकिन कुछ अपना सिस्टम होना जरूरी है, whether it is for entry exits and everything. मैं जो आपको डिमांड सप्लाई की बात बता रहा था, अभी आई मीन when I share a chart we will discuss that, but you know prices are being plot because demand supply is being developed on the chart. So prices is secondary, demand supply is primary, and the indicator RSI and all those are price based indicators. So of Yeah. course price plot होने के बाद वो plot होंगे. Prices manipulate हो सकते हैं. I was telling you that क्योंकि let's say किसी बड़े प्लेयर ने 1 लाख क्वांटिटी बाय की,
एंड अगर मार्केट बेसिस पे 5,000 क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी भी सेल कर दी तो वो कैंडल बहुत बड़ी बनेगी बिकॉज मार्केट से हुआ है मार्केट प्राइस पे से हुआ है यू हैव टू ऑर्डर ऑप्शंस राइट एक तो मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगाओ नहीं तो फिक्स प्राइस पे ऑर्डर लगाओ Right. प्राइस पे तो इफ यू प्लेस द ऑर्डर ऑन द मार्केट ऑर्डर तो प्राइजेस अगर सेल करना है तो वो लोएस्ट प्राइस लेके आपका ऑर्डर फिल करेगा या फिर अगर बाइंग वाला मार्केट ऑर्डर लगा है तो वो हाईएस्ट प्राइस लेके आपका ऑर्डर फिल करेगा क्वांटिटी जब तक फिल नहीं होती आपकी तब तक तो व्हाट हैपेंस कि आपने सेल किया किसी बड़े प्लेयर ने 1 लाख क्वांटिटी में से 10,000 क्वांटिटी मार्केट में सेल कर दी मार्केट ऑर्डर पे तो प्राइस बहुत फास्ट नीचे आएगा बट देयर विल नॉट बी एनी वॉल्यूम ऑन दैट कैंडल बिकॉज उसने 10,000 ही बेचा 1 लाख लेके Right. सो Understand. डिमांड सप्लाई इज नॉट बीइंग मैनिपुलेटेड प्राइजेस आर बीइंग मैनिपुलेटेड उससे क्या होता है जो प्राइस बेस इंडिकेटर है वो आपको आरएसआई दिखाएगा नीचे जा रहा है फिर मूविंग एवरेज के नीचे आ सकता है कैंडल बड़ी हो सकती है सो ऑल दिस ट्रिगर्स जो प्राइस बेस सब कुछ फॉलो कर रहा है सो हैव समथिंग विच इज अ बेस विच ड्राइव्स द प्राइसेस एंड आई फील ऑन द चार्ट दैट इज डिमांड सप्लाई वो डिमांड सप्लाई भी क्यों आता है दैट्स अ डिटेल अनदर डिस्कशन बट ऑन द चार्ट यू शुड ओनली हैव 3 थिंग्स इन प्लेस एक तो a trend a strength of the price strength of the price is not RSI outperformance of the chart versus benchmark and third thing is the most important is demand supply behavior कि क्या हो रहा है and in this in the link which you have joined उसी में डिमांड सप्लाई का एक वीडियो और एक पीडीएफ भी है इफ यू स्क्रॉल अप वहां पे देखिए Okay. Okay, sir. I'll go through it. हाँ गो थ्रू दैट दैट्स अ रियली बेसिक वो है थॉट प्रोसेस है उसमें कि क्या बिहेवियर है चार्ट एंड हाउ वी कैन ट्रैक दैट ऑन द चार्ट तो Okay, आई मीन दैट विल हेल्प डेफिनेटली बट आई रियली वांट यू टू फोकस ऑन डिमांड सप्लाई क्योंकि वो दैट चेंजेस अ लॉट इन ट्रेडिंग Right, sir. I'll go through it today itself. या श्योर Yeah. सो सुपर गुड टू कनेक्ट विथ यू गाइज हाय नजीब कैसे हो आप अल्लाह गुड मॉर्निंग अभिषेक आपने कोर्स कंटेंट देखा पूरा आई मीन यू हैव एनी हाँ स्पेसिफिक सर क्वेरीज और इनटू दैट नहीं सर अभी मैं देख नहीं पाया थोड़ा बिजी था 10 दिन से थोड़ा बाहर था राइट अभी सो स्टार्ट हुआ बट आई रियली वांट यू टू गो थ्रू क्योंकि क्वेरीज आना जरूरी है और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभिषेक कि अभी का मार्केट ऐसा है ना कि दैट विल गिव यू स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखो मैं ग्रुप में दे रहा हूँ बट आई रियली डोंट वांट यू टू डिपेंड ऑन माय पिक्स आई वांट यू टू पिक योर ओन पिक्स एंड देन सजेस्ट कि ग्रुप पे कि हाँ ये कैसे लग रहा है ये कैसे लग रहा है बिकॉज फिर वो आप खुद से अगर निकालोगे और वो स्टॉक 2-3 बार ऐसा हुआ कि चल पड़ा तो यू नो कि व्हाट यू आर हाउ यू आर फाइंडिंग और फिर उसी में आप ट्रेड करोगे सो जो भी मेंबर्स है जिन्होंने कोर्स लिया ना आई रियली अर्ज कि वो डाले कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है बहुत सारे लोग डालते हैं बट आई मीन आप भी शुरू करो ठीक ठीक ओके सर हाँ। नजीब कैसे हो आप ऑल गुड एक मिनट आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी कैन start any stock specific discussion. Just let me know once you see my screen. You guys can see my screen? Yes. Okay. एक जनरल बिहेवियर डिस्कस करना था सबके साथ एक कंसोलिडेशन के बाद जो मूवमेंट आती है ना सो अगर लेटेस्ट स्टॉक्स का बिहेवियर देखेंगे ना सो व्हाट हैपेंस कि चार्ट पे अगर वीकली में देखेंगे तो वो बहुत ऊपर भाग जाता है देन कंसोलिडेट करता है एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग अप ऐसा बहुत बार देखने को मिला है आई मीन वी हैव अ पोजीशन अलग की क्रोनॉक्स में है डीडेव में है ऑल द सेम बिहेवियर कि ये स्टॉक बहुत ऊपर भाग गए फिर कंसोलिडेट किए देन वी बॉट लो रिस्क एंट्री जहाँ पे डिमांड कंफर्मेशन था एंड देन दे मूव अप ये बिहेवियर
ट्रैक करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मार्केट का वो चेंज हो रहा है, स्टांस चेंज हो रहा है। तो उसमें ये बिहेवियर देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स भाग जाते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होती है, हमें हमें दिक्कत क्या होती है कि यार इतना स्टॉक भागा है तो लेना है कि नहीं लेना है। तो ऐसा तो मत करो कि 1 वीक में वो स्टॉक भाग गया और आप, या फिर 1-2 दिन में स्टॉक भाग गया और आप उसी उधर ही एंट्री ले रहे हो। दैट विल बी लिटिल हाई रिस्क एंट्री। उसको कंसोलिडेट करने दो। अगर कोई स्टॉक ऐसा है कि यहीं से ऊपर भाग जाता है तो जाने दो, छोड़ दो उसको। लेकिन आपको ये देखना है कि वीकली पे बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है, क्लोज़ अच्छा हुआ है, एंड देन अगले 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते वो कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद में अगर आपको कुछ एंट्री मिलती है तो ही आपको वो स्टॉक में कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है, डिमांड कन्फर्मेशन के साथ। अगर वो नहीं मिलता है ऐसा कुछ स्टॉक, आई हैव वन स्टॉक लाइक दैट। ये देखो, ये स्टॉक है। ये स्टॉक ना, ये यहाँ से लेके मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इस स्टॉक को यहाँ पे अपने लिस्ट में, शॉर्ट लिस्ट सेक्शन में डाला था यहाँ पे। बट उसने ना आगे 1-2 हफ्ते तक मेरे को एंट्री नहीं दी है। सो आई एम नॉट कि यहाँ पे इतना अच्छा भाग चुका है तो मैं यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ एंड देन आई विल होल्ड इट, क्योंकि मैं रिस्क कितना रखूँगा उसका, लो रिस्क, मतलब ये अगर इसे रिस्क अगर देखेंगे तो 30% का रिस्क है, तो इतना तो हम रख नहीं सकते। तो कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन में आपको लो रिस्क एंट्री मिल जाती है, वो भी डिमांड कन्फर्मेशन के साथ। तो ये स्टॉक का बिहेवियर है। मैंने ये फंडामेंटल बाकी सब एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट बेसिस पे दिया था। लेकिन स्विंग के लिए ऐसे वाले स्टॉक में एंट्री छोड़ देना चाहिए। आई मीन दैट्स अ वेरी हाई रिस्क एंट्री। मैं इसमें ये भी नहीं सजेस्ट करूँगा ऐसे वाले एंट्री स्टॉक्स के बिहेवियर में कि आप पोजीशन साइज़ कम कर लो। होता क्या है कि यू डोंट नो कि ये पोजीशन साइज़, अगर मान लो यहाँ पे आपने, ये स्टॉक ने अच्छा बिहेव किया है, कितना वीकली में 35% दिया है। आपने आधा पोजीशन भी लिया ना, तो आपका रिस्क फिर भी बहुत बड़ा है स्विंग के लिए। तो बेटर टू अवॉइड, और बाकी स्टॉक्स के अपॉर्च्युनिटीज़ जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अम, जैसे अभी हमने क्रोनॉक्स देखा, फिर डीडीएफ देखा कि ये स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, देन यू गेट अ लो रिस्क एंट्री। आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच यू शुड बी फोकसिंग ऑन। ये अभी मार्केट चेंज हो रहा है तो ये बिहेवियर देखने को मिलेगा। जब आगे मार्केट फुल फ्लेज बुल रन में कन्वर्ट होएगा तो आपको ऐसे मिलेगा कि हमेशा लो रिस्क एंट्री मिलती जाएगी। फिर वो वीकली पे भी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देगा, वीकली पे कम मूवमेंट देगा, लेकिन आपको लो रिस्क एंट्री अवेलेबल करते रहेगा हमेशा। ये बिहेवियर डेफ़िनेटली ध्यान में रखो। ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने लेटेस्ट डिस्कस किए। इस बेसिस पे कुछ है क्या क्वेरी? आई मीन आई वांटेड दिस टू, कि आप इसको ध्यान में रखो, ये बिहेवियर को ध्यान में रखो। एक ना ये भाऊ अभी जॉइन किए नहीं है, बट आई विल डिस्कस कि एक लो रिस्क एंट्री वाला ऑप्शन था। हमने ये स्टॉक ट्रेड मैंने अपने ग्रुप पे डाला था ये स्टॉक, अल्लाह, इफ यू रिमेंबर, कि नावा और कैस्ट्रॉल डाला था। तो नावा Yes. परफॉर्म्ड वेल, कैस्ट्रॉल ने शायद ऐसे हमने एग्जिट किया कैस्ट्रॉल में। Exit किया है। हाँ। तो उसका लॉजिक ये था ना, तो यहाँ पे मैंने उसको एंट्री दी थी, ये वाली शायद एंट्री थी। उसका लॉजिक बेसिक ही ये था कि हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया उसमें ये बैठ रहा था, एंड देन द रिस्क वाज वेरी लो। यहाँ पे अगर देखोगे तो रिस्क बहुत कम था। तो ये रिस्क के साथ अगर 1:2, 1:3 भी मिलता है तो काफ़ी अच्छा था। ये मेरा बेसिक थॉट था कि इस ज़ोन में आके कहीं पे वो रिएक्ट करेगा। पहले यहाँ पे रिएक्शन नहीं है तो, बट उसने यहाँ पे रिएक्शन दिया भी। इस ज़ोन में ये वाला रिएक्शन आया, ये वाला। आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कंसोलिडेट करके ऊपर गया है। तो यहाँ पे डेफिनिटली एक रिएक्शन आया, बट वी गॉट 1:2। यहाँ पे 1:2 भी नहीं, 1:3 तक मिल गया था। बट 1:2 में बुक किया तो दैट्स आई थिंक फेयर इनफ फॉर द इन्वेस्टमेंट। एक आईडीबीआई का भी ये था, वो भी एक ग्रुप पे हमने इस ज़ोन में कहीं पे आईडीबीआई लिया था।
और वो भी हमें 1:2 दे के चला गया था। अल्लाह IDBI तूने ट्रेड किया था क्या? नहीं, आईडीबीआई नहीं लिया था मैंने। हाँ, सो IDBI भी हमने इसी यस आई गेस इसी कैंडल पे हमने उसको लिया था और हमारा 7% का एसएल था एंड देन इट गेव अस 1:2। यहाँ पे शायद हमने यहाँ पे बुक किया था, पूरा रुका नहीं था, हमने यहाँ पे बुक किया था उसको एंड इट परफॉर्म। ये एग्जैक्टली वही सेम थॉट है कि एक डिमांड सप्लाई का बिहेवियर जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाता है व्हेन द स्टॉक मूव्स अप तो डिमांड अच्छा है, व्हेन द स्टॉक इज कमिंग डाउन देयर इज नो सप्लाई बट स्टॉक इज कमिंग डाउन एंड इट इज गिविंग यू अ कंफर्मेशन कि यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ आपको लो रिस्क एंट्री मिली। लो रिस्क एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन नोज व्हाई इट इज। जो कोर्स कंटेंट को डिटेल में पढ़े हैं, बट लो रिस्क एंट्री ऐसी है कि अगर इट सेव्स यू फ्रॉम अ बिगर लॉस, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। और फिर उसमें 1:2 मिल जाता है। सो दैट्स व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दैट। ये एक आशीष, मैं डिमांड सप्लाई की जो बात कर रहा था ना, सो इफ यू मे रिलेट टू दिस मोमेंट कि ये स्टॉक नीचे आ रहा है बट देयर इज नो वॉल्यूम, देयर इज नो सप्लाई इन इट एंड देन यहाँ से वो ऊपर जा रहा है तो अगेन इट इज गोइंग अप विद द हायर डिमांड प्लस उसको you can see that 6 months demand supply is positive. It's actually not positive, it's very good अभी के लिए, but यहाँ पे वो positive था and then even 3 months and 2 month demand supply is positive. उसके साथ अगर low risk entry मिल गई है and then again this EMA is 108 EMA which is giving us 6 months average price. तो वो डेटा हमें मिल रहा है एंड दैट्स वेयर वी थिंक कि ये यहाँ से इट ट्राइड अबव, एक बार ऊपर आया, वापस नीचे अगर आ रहा था तो वो सप्लाई नहीं था एंड देन इट गेव अस द एंट्री। So you take this decision based on volumes that you see on the along with the lines. Correct. So when I say volume, when you say volume is only you're talking about one candle, whether it is daily, weekly, whatever time frame it is. But when you speak about volume, you are talking about one candle. When you Right. speak about demand supply, you are talking about a certain period. Okay. कि Okay. उस पीरियड में how much buying has been done, by how much selling has been done. Okay. So example, अगर मेरे को दूसरा कोई एक स्टॉक है जो we will discuss. So one question here, sir, but how will you decide that the volume which is down is a buying volume or a selling volume, just based on the candle close, whether it closes above or whether So it... no, so ऐसा not basically based on that, but यहाँ पे होता क्या है, see if you plot a volume, ये exactly इससे मैच नहीं होने वाला। You have this ये एक्सट्रापोलेट करके करता है exactly कि how the candle is closing, how much the volume is, and it is also calculating कि ये पिछले 50 days या फिर 30 days whatever period we select, based on that average volume के साथ क्या closing हुई। So it gives you that, it considers all that data और फिर ये आपको कैंडल, ये वाली कैंडल मतलब नीचे वॉल्यूम वाली कैंडल जो है वो प्लॉट करके देता है। that's where you get this clarity कि यहाँ पे ये जो एक्सट्रापोलेट होके दिख रहा है एंड देन the calculation of this 6 months and 3 months and 1 month demand supply। यहाँ पे यूजर डिफाइंड भी है। आई जनरली कीप इट फॉर 2 weeks कि वो एक क्विकली मोमेंटम दिख जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे ही ये 1-1.5-2 हफ्ता खत्म होने को आएगा, यू कैन सी यहाँ पे ये बहुत बड़ा आपको डिमांड में 2 हफ्ते के बेसिस पे बहुत अच्छा रेशियो दिखाएगा। सो यू अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया है, इज इट फिटिंग माय एंट्री क्राइटेरिया। अगर बैठ रहा है तो यहाँ पे 2 हफ्ते के बेसिस पे भी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है, तो देन इट इज गोइंग टू गो अप, दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी। Okay, sir. ये एक था देन लाइक कहाँ पे गया वो? सो यहाँ पे भी इफ यू
चेक दिस कि यहाँ पे इट्स ट्राइंग कि ये बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखेगा। इफ़ यू डोंट हैव दिस टेबल, तो आपको ना ये तो पता चलेगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं ऑन दैट पर्टिकुलर कैंडल। तो आपको ये देखने को विजिबली आपको ये देखने को लगेगा कि देयर इज अ गुड डिमांड डेवलपिंग। बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियोज ऑन 6 months, 3 months, 1 month, यू कैन सी 1 month का अभी भी निगेटिव है, एंड इवन ऑन 2 week साइड इट इज निगेटिव. So there is no point buying this stock now just because it is in the demand zone. ये एक base create किया है and all that things. We need that confirmation whether it is trending up. Along with that, the demand supply is in place. So वो बहुत important point हो जाता है. ये आई थिंक दिस वाज अ गुड एग्जांपल कि यहाँ पे दिखने के लिए तो दिख रहा है. इफ यू डोंट हैव दिस टेबल इन प्लेस, क्या हो रहा है इसमें? Yeah. Sorry, yes, tables. So if you don't have these tables, आपको ऐसे दिखने में लगेगा बहुत अच्छा डिमांड हो रहा है, डेवलप हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो हैपनिंग. लेकिन हमें फिर वो कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, राइट? यहाँ पे लेट्स से हमारे पास टेबल नहीं है, वी डोंट हैव दिस डेटा ऑफ डिमांड सप्लाई ओवर सर्टन पीरियड्स, तो हम यहाँ पे तो डेफिनेटली बाय कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिमांड दिख रहा है, यहाँ पे डिमांड डेवलप होते हुए दिख रहा है, राइट? बट ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है, देन वी डोंट हैव पॉजिटिव डिमांड सप्लाई ऑन ऑल 3 टाइम फ्रेम्स. और वो भी 6 months, 3 months क्यों है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? 6 months इज अ 2 quarter डेटा, so 3 months is 1 quarter data, but 6 months is generally the institution buy spread their buying over 2 to 3 quarters based on the performance of the company. अगर वो बाइंग कर रहे तो इट हैज टू बी पॉजिटिव, show us on the chart कि ये पॉजिटिव है and they are interested into buying more. 1 month का डेटा it gives you a little momentum kind of thing कि डिमांड में भी स्पीड है, डिमांड में भी मोमेंटम है. Based on that, then you will get the confirmation with other entry criteria. Any specific query based on this? ये एक let's discuss this also. यहाँ पे बहुत सारे अलर्ट है. Yeah. ये कंसोलिडेशन का जोन था, इसने बहुत अच्छा क्लोज यहाँ पे देखें, इट इज ट्रेंडिंग अप. व्हाई आई एम सेइंग पर्टिकुलरली अभिषेक, मैं बता रहा था आपको कि आप देखो और स्विंग ट्रेड के लिए ये एनवायरनमेंट अच्छा है, बिकॉज अभी चांस है कि वी विल विद दिस मोमेंटम वी कैन गो टू ऑल टाइम हाई. एक यहाँ पे जाके रिट्रेसमेंट आ सकता है. तो ये जो जर्नी है, ये वाली जर्नी जो है, तो ये वाली जर्नी में मान लो कि 2-3% का मूवमेंट है, तो उसमें जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे, जो स्विंग वाले हैं. तो आइडियली आपको इस जोन में यहाँ कहीं पे भी लेना था. अगर नहीं भी लिया तो ये भी पॉइंट अच्छा है जहाँ पे सेंटिमेंट अच्छा है मार्केट का स्विंग के लिए. वी कैन टेक दैट एंड देन यूज दैट सेंटिमेंट इन आवर फेवर टू डू स्विंग. वो स्विंग कैन बी एनीवेयर, मतलब 2 हफ्ते से लेके 6-8 हफ्ते तक का होल्डिंग कहीं पे भी हो सकता है. बट देन ये मोमेंटम यू कैन यूज दैट. तो आप डेफिनेटली इसको एनालाइज करो. वीकली पे बहुत क्लियरिटी मिलेगी इसकी. ओके सर, ओके सर. या
सो इफ यू सी वीकली पे ये बहुत अच्छा कंसोलिडेट करके देन इट इज मूविंग अप. सो इट इज लाइकली कि ये ऑल टाइम हाई के पास तो जाए एंड देन वी मे सी सम प्रॉफिट बुकिंग या फिर वी मे सी सम कंसोलिडेशन लाइक दिस और फिर उसको ऊपर लेके जाए. एक बिहेवियर निफ्टी का वीकली ट्रेंड पे डिस्कस करते हैं. वो है दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, ये वाला. यहाँ से यू नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि ये 2021 में जो करेक्शन आया था तो वो था इट केम डाउन 18-18.5%. इट वेंट अप, कंसोलिडेट, थोड़ा सा नीचे आया टू आवर 6 मंथ्स एवरेज प्राइस एंड वेंट अप अगेन टू एग्जैक्टली दिस पॉइंट जो ऑल टाइम हाई था. वो फिर वहां से वापस रिट्रेस होके देन वी गॉट दिस आगे वाला जर्नी, दिस जर्नी. So you need to understand कि to get this journey, ये बुल रन मिलने के लिए this is very important कि ये ऊपर जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, रिट्रेस भी हो तो अच्छा है, नहीं तो कंसोलिडेट करे, यहाँ पे भी ऊपर, ये वाला जो है ना ये पॉइंट, यहाँ पे ऊपर होके थोड़ा सा रिट्रेस, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना जरूरी है. देन ओनली यू विल गेट टू सी दिस जर्नी. नहीं तो फिर वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे ही करते रहेगा. फिर जनरली पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है. तो ये सब उस फेज के रीजन की वजह से होता है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, सेंटिमेंट बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन या फिर बायर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि इस जोन में सेंटिमेंट वो हुए, कंसोलिडेट हुआ है, एक अच्छा बेस बना है, देन मार्केट ऊपर जा रहा है. तो यू नीड टू कीप एन आई कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैपन. ये हो भी सकता है, दिस कैन बी एक्सपेक्टेड, और फिर उसके बाद में अच्छी जर्नी मिल सकती है. नाउ हाउ मच टाइम इट टेक्स, जनरली 1-2 क्वार्टर का डेटा वो ले लेता है कि इतना टाइम तो उसको चाहिए कंसल्टेशन करने में. उसके बाद में अगर जब ऊपर जाएंगे तो ये अच्छी रैली मिल जाएगी. सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, दिस इज अ गुड टाइम टू बिल्ड योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. तो आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक साइड बाय साइड बिल्ड करो एंड देन टेक एडवांटेज ऑफ द स्विंग. मैं स्विंग की बात कर रहा था जो अभी डिस्कस किया. तो हम इस एनवायरमेंट में हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली बिहेवियर ऐसा नहीं है क्योंकि ये रिट्रेस होकर ऊपर गया. बट यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे रिट्रेस नहीं होता और इसी जोन में कंसोलिडेट करके ऊपर जाता ना, तो ये यहाँ से जाके यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास रिट्रेसमेंट आ सकती थी. ये पॉसिबल था, ये एक्सपेक्टेड था. एग्जैक्टली यही चीज हम अभी चार्ट पे देख रहे हैं. यही चीज हम अभी चार्ट पे देख रहे हैं कि दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग. यहाँ पे कंसोलिडेट किया है एंड इट इज मूविंग अप. तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, आनी जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा, यही से ऊपर निकल जाएगा तो वो इट विल बी लाइक फेक ब्रेकआउट. ऊपर जाएगा फिर वापस यहाँ से नीचे आएगा. जब यहाँ से नीचे आएगा तो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग दिखेगा, फिर लोग डर जाएंगे. वीक हैंड्स को निकालना जरूरी है. तो थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस होगा एंड देन ऊपर जाएगा. बट रिट्रेस होना, कंसोलिडेट होना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट टू सस्टेन अबाउट. तो ये एक डेफिनेटली आप ध्यान रखो इस चीज पे कि ये पॉसिबल हो सकता है. इसमें अच्छी कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, बेसिक फंडामेंटल्स बेसिस पे अच्छी है, वो कंपनीज को कुछ भी डैमेज नहीं होता है. वो कभी भी मिसबिहेव नहीं करती है क्योंकि उसको वो फंडामेंटल बेसिस पे ऊपर जा रही है. दे जस्ट यूज द मार्केट सेंटिमेंट टू बाय मोर क्वांटिटी. तो वो बाय आउट हो जाता है. तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है अभी. वी आर नॉट एनीवेयर बैड इन दिस जर्नी टू बिल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. लेकिन स्विंग के लिए थोड़ा रुक के चलना, मतलब कॉन्शियस होके स्विंग करना इज, आई वुड सजेस्ट कि ये फुल फ्लेज स्विंग ट्रेड एनवायरनमेंट नहीं है. इट्स लाइक थोड़ा ऊपर जा रहा है वापस नीचे आएगा. तो कम पोजीशन के साथ भी स्विंग ट्रेड करो अगर रिस्की लग रहा है तो. एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ ऑन स्पेसिफिक स्टॉक
ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम इफ यू फील कि ये टॉपिक पे बात करते हैं. Allah, by the way, I got a call from that guy. I think September के dates available है. He will send Okay. you that dates also. और मेरे को भी नहीं भेजा, but I called up. He called up. Okay. कि Okay. September. Okay. So I will share that accordingly. Okay. Okay. Great. We will Yes, do. thanks. Yeah. Stop sharing. So guys, बताइए any. And for like positional trading, how much importance will you give on the daily behavior or weekly behavior of the Nifty? I mean, how would you assess the, like if you want to make a new entry and say Nifty is on a downward trend for last few days, like 4 5 days, then will you make an entry or will you wait for the trend to change like on daily time frame? If you are thinking of a long term investment like this. So long term investment के लिए तो see there are two things which we follow. One is short term and one is long term. तो one is long term trend के लिए मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अगर निफ्टी long term trend में है तो then it is good to build your wealth या creation वाला investment वाला portfolio. उसके लिए सिर्फ निफ्टी का टाइम फ्रेम वाला ट्रेंड देखे नहीं चलता है. आई ऑल्सो सी कि निफ्टी के कौन से साइकिल में अभी हम हैं. सो अक्टूबर से लेके हम डाउनवर्ड साइकिल में थे. अब जो चल रहा है वो साइडवेज चलेगा. इट विल टेक 1 2 3 quarters टू मैच्योर एंड देन वी विल गेट अ बुल रन अगेन. तो ये होने के लिए यू नीड टू नो कि व्हाट इज अ मार्केट साइकिल वी आर इन एंड देन द ट्रेंड. इसका रीजन ये है कि यू कैन नॉट ओनली असेस कि सिर्फ निफ्टी ये में के ऊपर है तो सेंटीमेंट अच्छा है. इट इज गुड. स्विंग ट्रेड के लिए वो हेल्प हो जाता है बिकॉज शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट चेंज होता है. तो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट चेंज होगा तो देन यू कैन कैप्चर द शॉर्ट जर्नी. वो स्विंग में मिल जाती है. लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लेट्स से यू फॉलो 200, तो अगर 200 के नीचे है निफ्टी, द सेंटीमेंट इज बैड. व्हाई द सेंटीमेंट इज गेटिंग बैड? बिकॉज there is something which the bigger guys have seen coming, and that is the reason they are selling something in the index वाले stocks में. सो अगर वो इंडेक्स वाले स्टॉक्स में बेच रहे हैं तो यू कैन सी दैट इज हैपनिंग एंड दैट इज द रीजन इट इज बिहेविंग कि वो नीचे जा रहा है. अगर वो नीचे जा रहा है तो उसका कुछ रीजन जो बड़े प्लेयर्स ने देखा है वो चेंज होना जरूरी है फॉर निफ्टी टू अगेन कमिंग बैक टू द नॉर्मल और टू गिव अस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. तो व्हेन यू सी अ चार्ट ऑफ निफ्टी फॉर सेंटिमेंट्स बेस्ड ऑन ये में, उसको सिर्फ ये मत देखना कि ये ऊपर है या नीचे. अंडरस्टैंड कि व्हाट द बिगर guys are thinking, the what the institutions are thinking, why this is happening. तो वो साइकिल को जानना जरूरी है. जस्ट फॉर अ स्टडी पर्पस गो एंड चेक एवरी अक्टूबर टू मार्च व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. Okay, और sir. वो क्यों होता है? यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम द मार्केट करेक्ट्स फ्रॉम सितंबर एंड अक्टूबर टू मार्च, एंड देन मार्च के बाद वापस एक जून तक का क्वार्टर कंसोलिडेट होता है. उसके बाद में वापस एक अप ट्रेंड आता है. ऑल दिस इज हैपनिंग फॉर सेवरल इयर्स. उसका कुछ रीजन होगा व्हाई दिस इज हैपनिंग. इज इट रिलेटेड टू ईयर ऑन ईयर वाला परफॉर्मेंस जो मार्केट का आता है, कंपनीज का आता है, उसकी वजह से है. निफ्टी का जो बिहेवियर है, उस निफ्टी का जो इकोनॉमिक साइकिल वाला बिहेवियर है, उसकी वजह से हो रहा है. इफ यू रिलेट ऑल दिस यू विल अंडरस्टैंड कि एक 3 साढ़े 3 साल वाला जो ओवरऑल पीरियड रहता है उसमें ये सब कुछ एक दो बार होके फिर हम उससे गुजरते हैं. तो अक्टूबर से अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट बिल्डिंग योर इन्वेस्टमेंट. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ स्टॉक्स ऊपर नहीं गए. आई विल शो यू. मैं एक एनालिसिस निकाल रहा था स्टॉक हेल्थ के, जो हमने ये दिए थे शॉर्टलिस्ट सेक्शन में जो ट्रेड्स दिए थे उसका क्या हुआ था. तो अक्टूबर में जो दिए दोज आर लाइक 120-30% अप. तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्टॉक्स नहीं चले, बट बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे तो वी शुड फॉलो द मार्केट सेंटीमेंट. और अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट का बिल्ड करना ड्यूरिंग दिस करंट पीरियड is going to give you something in next
3-4 क्वार्टर्स लेट्स से, क्योंकि ये 2 क्वार्टर्स में अच्छे कंपनीज 2 जैसे हम डिमांड का वो देख रहे थे, फॉलोअप देख रहे थे कि डिमांड का फॉलोअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आया उसका फॉलोअप अगले क्वार्टर में आएगा और एक क्वार्टर में आएगा। सो दैट विल बी लाइक कि हाँ, ये फॉलोअप रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू वेट फॉर दैट क्वार्टर द रिजल्ट टू हैपन। उस बीच में चार्ट पे क्या होता है, एक बिहेवियर देखने को मिलता है जो कंपनी में इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने कुछ बड़ा देखा है, तो वो इस क्वार्टर में प्राइस को नीचे लेके आएंगे, लेकिन उसमें सप्लाई नहीं होगा एंड देन वीक हैंड्स विल बी शेकन आउट, क्योंकि प्राइस अगर 20-22-30% नीचे आता है तो ऑब्वियसली जिसका रिस्क मैनेज नहीं है वो निकल जाएगा इतना बड़ा फॉल देख के प्राइस पे, तो उनको वो चाहिए, देन दे बाय दैट क्वांटिटी अगेन एंड देन दे विल वेट कि नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो देन दे विल बाय मोर इनटू दैट कंपनी। उनका टाइम होराइजन, होल्डिंग पीरियड का टाइम होराइजन जो है दैट इज समवेयर अराउंड 8 क्वार्टर्स, 2 साल का व्यू लेके चलते हैं वो हमेशा। सो दे आर नॉट हियर कि हमने ये 2 क्वार्टर में बाय कर लिया क्वांटिटी एंड द प्राइस इज अप्रिशिएटेड 50% तो हम बेच देते हैं। दे आर नॉट हियर फॉर दैट। वो उनका एक्सपेक्टेशन भी बड़ा रहता है क्योंकि उनका एनालिसिस बड़ा है, पैसा बड़ा लगाते हैं। सो व्हाट वी नीड इज टू फॉलो दैट माइंडसेट कि हम उनके बिहेवियर में हमें कैसे अडॉप्ट कर ले, इन्वेस्ट कर ले। सो आई थिंक मार्केट सेंटिमेंट से भी ज़्यादा मार्केट साइकिल इज इम्पोर्टेंट। उसके साथ में सेंटिमेंट जोड़ोगे तो देन दैट विल हेल्प Okay, यू। sir. Okay. Yeah, thank you. या सो भूषण एंड अभिषेक, मैं आई विल सजेस्ट यू कि जो कोर्स कंटेंट में दिया है ना, वो पहले दोज आर द स्किल्स विच यू प्राइमरीली नीड व्हेन यू ट्रेड, तो वो पहले कर लो। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट वी डिस्कस व्हेन आई गिव ट्रेड, या फिर मैं कुछ सजेस्ट करता तो आई डेफिनेटली टेल कि हाफ कर लो, फुल कर लो, 1/3 कर लो। तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट का डे टू डे बेसिस पे आपको वो डेवलप होते रहेगा, दैट विल हैपन ऑन द साइड। बट ये एक बार स्किल्स, बेसिक सेट ऑफ स्किल्स इफ यू एक्वायर, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। डोंट गेट इनटू दिस इंप्रेशन कि ये इमीडिएटली आ जाएगा, 1-2 महीने में सब कुछ आ जाएगा। बट एक बार वो आपके स्किल्स आपके सेकेंड नेचर बन गया था, देन यू विल बी फोकस्ड ऑन कि मार्केट साइकिल क्या चल रहा है, हम मार्केट साइकिल में कहाँ पे है। तब तक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्किल्स पे ध्यान दो। बाकी जो चीज़ है जो वो आपको ऑलरेडी मिल रही है, क्या कि रिस्क को कवर कैसे करना है, कौन से एनवायरनमेंट में ट्रेड करना है, नहीं करना है। इवन इन वीकली मैं हमेशा ये वाले सेशंस में भी एंड देन आवर ग्रुप में भी मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि व्हाट एनवायरनमेंट वी आर इन, क्या करना चाहिए, हाउ वी शुड बी कॉन्शियस, या फिर फुल करना है, ये सब मैं उधर बताता हूँ, तो वो आपको आ जाएगा। बट फोकस ऑन द स्किल्स फर्स्ट, उसको एक बार लेट इट बिकम अ सेकेंड नेचर, और फिर ये वाला ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आप फिर आओ। that's how I would suggest to go into this। तो वो हेल्प होएगा, बिकॉज ट्रेडिंग स्किल्स वो अगर आप थोड़े से भी मिस करोगे ना, तो आप डे टू डे लाइफ में ट्रेडिंग में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आई मीन डे टू डे मतलब स्विंग लोगे जब भी तभी, या फिर इन्वेस्टमेंट में। तो वो पहले फोकस करो एंड देन आई मीन वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू डिस्कस दिस मार्केट साइकिल्स एंड स्टफ। Sure. वो तो होते रहेगा। या Sure. Bhushan, is there anything you want to know about this? Bhushan, you can hear me, right? Yes, I can do. Yeah. Sure. Yes. Great. Awesome. And good, Ashish. I mean, good to connect with you because बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता चलता है कि इक्विटी इज द वे आउट। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग के लिए आते हैं या फिर ऑप्शंस के लिए आते हैं, बट नहीं सर, मतलब ऑप्शन में काफी वो रहता है, दिमाग उसी में ज्यादा रहता है, तो यू आई कैन नॉट फोकस ऑन वर्क एंड आल्सो आई जस्ट लेफ्ट इट आउट। और पोजिशनल का भी मुझे आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि वो हो सकता है, बिकॉज उसमें फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा रहता है कि आज 5-6 हजार ऊपर, नेक्स्ट डे 5-6 हजार नीचे। तो सो इन दैट आल्सो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने स्विंग के लिए दिया है
and if that option is giving me more than 100% in the day, मैं Ah, book yeah, करता हूँ। right, yeah, मैं yeah. क्यों मतलब ऐसा Yeah, कौन yeah, सा आपको सेंटिमेंट है, मैं तो रखता भी नहीं हूँ उसको कि हाँ 100% मिल रहा हाँ, है तो दिन मतलब को अपना दिन। रूल बेस्ड अगर पहले एंट्री एग्जिट वो सब डिसाइडेड है तो या आई थिंक इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, या अदरवाइज एग्जैक्टली। you just leave it like that, then it's not, it's quite नहीं 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 disturbing. वो तो फिर इट्स नॉट अ Gambling. ट्रेडिंग, देन इट्स अ गैम्बलिंग कि आप Gambling. लेके छोड़ दे रहे हो उसको। हाँ, बट ओवरऑल अगर देखोगे तो स्विंग में ही पीसफुल है, बिकॉज आप वो 97 मिनट वाला भी टाइम फ्रेम देखोगे तो हाँ, निकाल के, आई विल टेल यू कि उसमें भी वो जाता है नीचे, लास्ट 15 मिनट में वो टर्न हाँ, अराउंड ही कर देता है पूरा वो कैंडल का ही। तो हाँ सर, जब तक वो क्लोज नहीं होता ना, तब तक आपको ऐसे ही लगता है कि यार मैं निकल जाता हूँ, निकल जाता हाँ, हूँ। लास्ट तो 5 वो फिर बार बार देखने का वो हो जाता है कि क्या है, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अपना बस ऐसा रहता है कि वीकेंड पे आई डू फॉर वीकली एनालिसिस फॉर वीकली ट्रेड्स, ग्रेट, and then on monthly I go for investment या kind of thing, तो end of the month जैसे अभी आज बैठ के करूँगा तो अंडरस्टैंड वैसा। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। But it इसमें was very informative session, sir. I've joined you first time. I have seen your. I mean, I wanted to join Lively, but because in live, but I couldn't make it for last few weeks. नहीं I तो वो was संडे thinking. को जानबूझ के किया है ना, पीपल जनरली हाँ, गेट टाइम, रिलैक्स हाँ रहता sir. है, दिमाग रहता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज तो रश में तो ये डिस्कशन हाँ. में नहीं होता है। I share the same group with you in other forums. Let's not mention it here, but from there I saw then I saw your website from ओके, same group, and then but very informative. Your website also is very amazing. The way you track the stocks. वी आर नाउ कमिंग अप विद द एग्जीक्यूशन आल्सो ऑन द वेबसाइट, तो Okay. Sir. यू नो दैट्स इन प्लेस, वो सून इट विल बी आउट। सो एक मेरे लिए वो था कि यू नो दैट वाज समथिंग व्हिच आई वांटेड दैट टू हैपन, क्योंकि अगर कोई आता है एनालिसिस करता है तो लेट दैट एग्जीक्यूशन हैपन ऑन द साइड, तो लेट्स सी हाउ And दैट। very selected parameters which you have chosen are very nice. वो And ड्राइविंग usual, फैक्टर्स ही है very. ना, वी रियली आई मीन सी फ्रॉम अ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, जो जिसको ये सब पढ़ना नहीं आता, बैलेंस शीट्स एंड यू नो, Hmm. डर लगता है। आई मीन पढ़ना नहीं, इट्स वेरी इजी, बट डर लगता है ना नंबर से हाँ, हाँ. जनरली। सो सो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है ग्राफिकल Yeah, yeah. रिप्रेजेंटेशन में देखना, एंड ओनली ड्राइविंग फैक्टर्स, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टेलिंग यू कि you know do your analysis based on what drives the prices. Right. So that is on chart, that is demand supply. So I'll ये go through your videos, sir. I think I हाँ will हाँ वो find डिमांड then सप्लाई वाला and तो then we'll just we'll connect next week again with more absolutely absolutely. knowledge on my side. So you are already on the group, right? I am there on your Telegram group and Okay, enrolled you for your correct. this. Okay, cool. Cool. Allah, any specific stock, specific query? I think we discussed yesterday, right? Day before yesterday. नहीं एक्चुअली आज नहीं, मुझे कल बाद में कुछ स्टडी करने के लिए इतना टाइम नहीं मिला, Okay, तो आज स्टॉक्स नहीं है। right. But do that on weekly, Allah जो हम बात कर रहे थे वो, यस यस डेफिनेटली, तो वो डेफिनेटली करो। यस आज है टाइम, आज वही प्लान किया है। 1-2 घंटा देखे ना, जस्ट आई मीन डोंट ओपन इवन अ डेली टाइम फ्रेम, जस्ट एनालाइज वीकली। राइट राइट वो बहुत अच्छा देखे जाएगा। सो राइट। माय बेस्ट ट्रेड्स, आई वाज टेलिंग अल्लाह, माय बेस्ट ट्रेड्स आज तक के मेरे पूरे जर्नी में, इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द वीकली। डेली में इट वाज ओनली टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन द वीकली एनालिसिस, तो लो रिस्क एंट्री which you need to find on daily, but weekly is something is amazing for analysis, and that too after you know the demand supply needs, basic fundamentals and quarterly results, तो वो weekly पे बहुत connect होता है। अच्छा, I think that will give you a good way out to do analysis. So good. I mean, if anyone doesn't have any query, we can close the live. यस आज मेरे तरफ से बहुत कम है। Okay, Sorry. cool. So let's close it. Thank you so much, guys. See you Thank next. you.
next Thank you very week. much, sir. Bye. Thanks. Bye. Bye. Bye.